Hello, my dear children. A very warm welcome to the EVS class. I hope you have seen the first video and you liked it too. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट वाला वीडियो देखा और आप लोग को अच्छा लगा. The first video was about myself. Okay? Myself, that means अपने बारे में. When you meet someone for the first time or when you introduce yourself to anyone, how do you answer? आप अपने बारे में क्या क्या बताते हो? फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपने बारे में, माई सेल्फ. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. We all know that there are so many parts in our body. Some are seen, some are outside our body, which we can see, and some are inside our body, which we cannot see. So today we will learn the chapter Parts of My Body. This is chapter number 2. The learning objectives of this lesson are different parts of our body, 5 sense organs and functions of different body parts. इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या समझेंगे, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे इन सारे पार्ट्स में जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर पार्ट्स ऑफ माय बॉडी. माय बॉडी हैज मेनी पार्ट्स. लेट अस नो देयर नेम्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड. You can see the picture of a boy. This is human body. Human body मतलब हमारी जो body होती है. So in this picture you can see the different parts. I will start from the top. Okay. Starting from the top, first we have head. जो हमारा सर होता है उसे क्या बोलते हैं? हेड. हेड के ऊपर क्या होता है? हेयर. सर पे सबके बाल होते हैं, हमारे बाल होते हैं, दैट इज हेयर. हेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. देन नेक्स्ट इज फोरहेड. फोरहेड जिसको हिंदी में माथा बोलते हैं, ठीक है, फोरहेड. देन वी हैव आईज, वी हैव नोज, देन mouth, we have ears. Ears are not mentioned here, but ears are also there. Then we have eyes are there, and eyes के ऊपर क्या होता है? eyebrows. eye के ऊपर eyelashes and eye के ऊपर जो होती है उसको eyebrow बोलते हैं. and eyes के ऊपर जो हमारे जो लंबे लंबे जो बाल थोड़े होते हैं उसको बोलते हैं eyelashes. So eyebrows and eyelashes, they are also a part of our body. Okay. Then coming down we can see mouth, मुंह. Then cheek, cheek मतलब जो गाल होते हैं. Then we can see lips, we can see chin. chin मतलब जो हमारी जो थोड़ी होती है, हिंदी में उसको कहते हैं थोड़ी. neck, neck that is गर्दन. Then shoulder, कंधे. चेस्ट जिसको हिंदी में छाती बोलते हैं. देन वी हैव हैंड. हैंड में जहाँ से हम हैंड को अपने मूव करते हैं दैट इज एल्बो. फिंगर, स्टमक, वेस्ट, थंब. देन पाम, पाम जिसको हथेली कहते हैं.
पूरा जो हमारा शोल्डर से लेकर के पाम तक जो होता है दैट इज आर्म, उस पूरे को हम आर्म कहते हैं. हैंड इज ओनली जो हमारा पाम वाला पोर्शन होता है, पाम एंड फिंगर्स, दैट इज हैंड. एंड शोल्डर से लेकर जो पूरा पाम तक का जो पार्ट होता है दैट इज आर्म. ओके, देन यू कैन सी thighs, knee, from our waist till ankle, that is leg. जो हमारा एंकल, वेस्ट से लेकर एंकल तक का पूरा पार्ट होता है दैट इज लेग. लेग में वी हैव थाई, देन नी, वी हैव फुट, वी हैव एंकल, वी हैव टोज, वी हैव सोल, वी हैव heel. I have shown you the picture of this human body. Now I will explain the parts one by one. First, I will explain all the body parts through this picture. You can see the picture of this boy. Now let us start from the top. We have head, and head, on top of head we have hair. Then forehead is there. You can see the forehead. This is hair. This is our head. Okay, this is our forehead. Then we have eyes. You can see the eyebrows. Then we have ear, nose. You can see the mouth. You can see the chin. Neck is there. Then you can see the chest. Stomach, arm. Arm, as I told you, arm is the this from shoulder till palm. This is our arm. Okay, from shoulder, starting from shoulder till arm, मतलब शोल्डर, कंधे से लेकर के जो हमारा पाम जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक जो पूरा पोर्शन है दैट इज नोन एज आर्म, उसको आर्म बोलते हैं. एंड हमारा हैंड जो है दैट इज palm and fingers. These are the fingers. You can see these are the, so palm, ये हमारी जिसको हथेली बोलते हैं हिंदी में, palm and fingers. This is known as hand. इसको हाथ कहते हैं. एंड शोल्डर से लेके पूरा जो palm तक होता है दैट इज आवर हैंड. ओके, देन you can see leg. Leg is again from our waist till this portion. This is our leg. waist से लेकर के जहाँ से हमारा foot start होता है उसको हम leg बोलते हैं. That is our leg. In leg we have, this is thigh, the part of the leg above knee, जो knee के ऊपर का part होता है that is thigh. And then knee is there. knee पे joint होता है जहाँ से हम अपने पैर को move कर सकते हैं. And then this portion यहाँ पे होता है calf. Then we have foot, we have sole. Sole जो होता है foot के नीचे वाला ये portion जो होता है this is your sole. Thumb is there, fingers are there. Okay, so these are our different body parts. You can see here, these are our different body parts. Of course, all the body parts are not shown here. सारे body parts को एक picture में दिखाना बहुत मुश्किल है. It is very difficult to show all the body parts in one picture because there are so many parts which we cannot see. जो बाहर parts हैं, जो the parts which are outside our body can be seen. All these parts which we can see in the picture are outside our body.
ये जितने पार्ट्स हमें इस पिक्चर में दिख रहे हैं ये सारे हमारे बॉडी के बाहर हैं. ओके, सिंस दे आर आउटसाइड आवर बॉडी वी कैन सी देम. हमारी बॉडी से बाहर हैं उनको हम देख सकते हैं. जो पार्ट्स हमारी बॉडी के बाहर नहीं है, जो अंदर हैं, उनको हम नहीं देख सकते. ओके, सो वी कैन नॉट सी दीज पार्ट्स इन द पिक्चर. नाउ आई विल शो यू वन मोर पिक्चर. Now, in this picture, you can see the body parts which are in front of our body and the body parts which are at the back. जो बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में सामने की तरफ हैं और जो बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में पीछे की तरफ हैं, आप वो दोनों पार्ट्स इस पिक्चर में देख सकते हो. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, एज आई टोल्ड यू, वी हैव हेड. हेड के ऊपर क्या है हमारा? दिस इज आवर hair. This is our hair as it is shown here. Then we have eyebrow, we have eye, nose, mouth, chin, chest, stomach. These are the body parts which are in front of our body, जो हमारी बॉडी के सामने हैं. ओके, लेग, टो मतलब पैर का जो अंगूठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको टो बोलते हैं. जैसे हाथ में जो अंगूठा होता है दैट इज थंब, और पैर का अंगूठा जो होता है उसे हम टो बोलते हैं. ओके, देन फुट मतलब हमारा पैर, नॉट लेग. लेग, एज आई टोल्ड यू, लेग इज फ्रॉम थाई टिल अवर, जहाँ से हमारा फुट स्टार्ट होता है दैट इज लेग. ओके, फुट. देन वी हैव नी. These are the parts which are in front. There are some parts which are at the back also, like peat, जो हमारी पीठ होती है, back. That cannot be shown if the picture is from the front. अगर सामने के हम body parts दिखा रहे हैं तो जो हमारा back है, हमारी जो पीठ है, वो नहीं दिखेगी. So in this picture you can see the back also. You can see the hair. You can see the ears. You can see the neck, then shoulder, then back. Back मतलब हमारी जो पीठ है. And as I told you, arm is from shoulder till palm. जहाँ से palm start होती है उसको बोलते हैं that is arm. ठीक है. Elbow is the joint from where you can move your hand. Hand is your palm and finger. दिस पोर्शन जिसको हिंदी में हथेली कहते हैं दैट इज़ योर पाम. इंग्लिश में उसे पाम कहते हैं. पाम एंड फिंगर्स को मिला करके जो पार्ट है दैट इज़ योर हैंड. ओके, देन यू कैन सी बटक्स. ठीक है, बटक्स बैक साइड में जो होते हैं दैट इज़ बटक्स, वेस्ट के नीचे. देन योर हील. ये लेग हमने इधर पिक्चर में देखा, लेग इज़ देयर, नी इज़ देयर, फुट, हील. टो जो आपका पैर का अंगूठा होता है उसको टो बोलते हैं. जो पैर का जो नीचे का पार्ट होता है विच यू कीप ऑन द फ्लोर, जब आप चलते हो तो पैर का जो पार्ट ज़मीन से टच करता है दैट इज़ योर सोल. ठीक है, हील है. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सो मेनी अदर पार्ट्स ऑल्सो. छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं which are not mentioned here, जिसके सारे parts दिखाना बहुत मुश्किल है. It is very difficult to show all the parts. So coming back to our lesson, parts of our body, you can see all the body parts in this picture. Head, hair, forehead, eyes, nose, mouth, cheek, neck, chin, lips. Then inside the mouth we have tongue, we have teeth. Okay, then elbow, hand, arm. Here you can see clearly which part is known as arm
मतलब किस पार्ट को हम आर्म बोलते हैं, जो कि शोल्डर से लेकर के जहाँ से आपकी पाम स्टार्ट होती है, दैट इज़ नोन एज आर्म. यू कैन सी द पाम ऑल्सो. पाम मतलब हथेली. यू कैन सी द फिंगर. यू कैन सी द थंब. ठीक है. एंड पाम एंड ऑल द फिंगर्स को मिला करके दैट पार्ट इज योर हैंड. देन यू कैन सी द चेस्ट, इसको छाती बोलते हैं. स्टमक, पेट, वेस्ट, वेस्ट दैट इज कमर. देन यू कैन सी थाई, थाई जिसको हिंदी में जांघ बोलते हैं. नी, लेग इज द पार्ट फ्रॉम योर वेस्ट डाउन, वेस्ट के नीचे से जहाँ से फुट स्टार्ट होता है वहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज़ योर लेग. वो क्या है? आपका लेग है. ओके. देन योर फुट, हील, टोज, सोल. टोज मैंने बताया था जो पैर का जो अंगूठा होता है दैट इज नोन एज योर टो. ठीक है. फुट, हील, सोल. सोल जो पैर का तलवा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो पार्ट व्हेन यू वेयर योर शूज, स्लीपर और यू वॉक बेयरफुट, जब आप खाली पाँव अगर ज़मीन पे चलते हो तो जो पैर का जो पोर्शन ज़मीन को टच करता है दैट इज़ योर सोल. ठीक है. सो दिस इज द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी मतलब जो ह्यूमन मतलब इंसान. सो दिस इज द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे पार्ट्स हैं. एंड ऑल दीज पार्ट्स प्ले अ यूनिक रोल. सारे के सारे पार्ट्स जो हैं सबका अपना अपना अलग फंक्शन होता है. नो पार्ट कैन परफॉर्म द पार्ट ऑफ एनी अदर बॉडी पार्ट. कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट का फंक्शन नहीं प्ले कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव 5 फिंगर्स इन वन हैंड. आपके एक हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं. All the fingers are different in size. There are 4 fingers and 1 thumb. Can you use the same finger for doing all the task? आपके सारे काम करने के लिए एक ही फिंगर को यूज़ कर सकते हो? We cannot do. Like when we hold a pencil, जब आप लिखने के लिए पेंसिल पकड़ते हो तो we use thumb and the index finger. हम थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हैं पेंसिल पकड़ने के लिए. नाउ इफ़ यू थिंक कि ओके आई कैन होल्ड द पेंसिल विथ एनी 2 फिंगर्स, कैन यू डू इट? आप नहीं कर पाओगे. कभी ट्राई करके देखो कि पेंसिल को आप थंब और इंडेक्स फिंगर छोड़ करके किसी और 2 फिंगर से पकड़ने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो जैसे 5 फिंगर्स में हर फिंगर का टास्क अलग अलग है. Similarly, there are so many body parts and each body part has its own unique function. हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है. कोई भी बॉडी पार्ट दूसरे पार्ट का काम नहीं कर सकता. You can see with your eyes only, you can eat with your mouth only. आप खाना मुंह से ही खाओगे, isn't it? आपको देखना है, आप आइज से ही देखोगे. कुछ अगर आपको पकड़ना है, कुछ उठाना है तो यू विल यूज़ योर हैंड ओनली. यू कैन डू इट विथ योर हैंड ओनली. आप किसी और पार्ट से नहीं कर सकते हो. सो ऑल द बॉडी पार्ट्स प्ले अ डिफरेंट फंक्शन. सबका अपना अलग अलग फंक्शन है एंड सारे पार्ट का फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल द बॉडी पार्ट्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. जैसे एक मशीन होती है, मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. अगर उस मशीन का कोई भी एक पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो वो मशीन नहीं काम करती है. सिमिलरली आवर बॉडी इज़ ऑल्सो लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है. ओके. बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स. हर पार्ट अपना अपना काम करता है. एक भी पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करता है तो क्या होता है? वी फॉल सिक. हम बीमार पड़ते हैं. बीमार पड़ने का क्या मतलब होता है? ने कहा कि मैम पेट में दर्द हो रहा था इसलिए. वाई वर यू एब्सेंट टू स्कूल यस्टरडे? मैम आई वॉज हैविंग स्टमक एक. स्टमक एक हो रहा था मतलब आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम थी. दैट मीन्स सम पार्ट वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. कोई पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था. यू वेंट टू द डॉक्टर. डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, मेडिसिन दिया एंड देन
इट बिकेम ओके. दवाई खा करके आप ठीक हो गए, वो पार्ट ठीक से काम करने लगा. मैम, आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई हैड फीवर. मुझे बुखार आ गया था. बुखार क्यों आ गया था? बुखार आ गया था मतलब देर इज़ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. बुखार आने का मतलब है कि बॉडी में कोई अनवांटेड चीज़ आ गई है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, तो उसको दूर करना है, उसको हटाना है, तभी बुखार जाएगा. सो यू गो टू द हॉस्पिटल, यू गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर गिव्स यू मेडिसिन, आप दवाई खाते हो एंड ठीक हो जाते हो. ठीक है ना. सो आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन विथ सो मैनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है एंड इससे बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं. हर पार्ट अपना अपना काम करता है. कोई भी पार्ट किसी दूसरे बॉडी पार्ट का काम नहीं कर सकता है. ओके. Now let us see the different parts of our body and their function. Here you can see the activities by hand. What are the activities? Each and every part of our body is useful. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत यूज़फुल है. क्या है? बहुत यूज़फुल, मतलब बहुत काम का है. नाउ लेट अस नो देयर यूजेस. हम देखते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं. नाउ फर्स्ट लेट अस सी द एक्टिविटीज़ बाय हैंड. हाथ से हम क्या क्या एक्टिविटीज़, मतलब क्या क्या काम करते हैं हाथ से. हियर यू कैन सी पुल, टेबल है और एनीथिंग एल्स. किसी चीज़ को खींचना है और पुश करना है. पुल मीन्स खींचना, पुश मतलब धक्का मारना. तो आप कैसे करते हो? आप उसको हाथ से पकड़ के खींचते हो ना. टेबल अगर खींचना होता है तो आप क्या करते हो? टेबल को हाथ से पकड़ करके खींचते हो. और इफ़ यू हैव टू पुश द टेबल, टेबल को धक्का मारना है तो आप क्या करते हो? टेबल को हाथ से पकड़ के धक्का मारते हो. इफ़ यू हैव टू होल्ड समथिंग, you have to hold your book, notebook, bag, bottle, tiffin box, pencil, anything. कुछ भी आपको पकड़ना होता है, so you hold it with your hand. आप हाथ से उसको पकड़ सकते हो. Isn't it? You write, लिखते कैसे हो? हाथ से ही लिखते हो. How do you clap? You clap using your hands. हाथ से clap करते हैं. clap मतलब ताली बजाना. How do you eat? You eat यूजिंग योर हैंड ओनली. हाथ से ही खाना खाते हैं. कैच, बॉल जैसे खेलते हो, बॉल से कैच कैच खेलते हो. यू थ्रो द बॉल टू समवन, योर फ्रेंड कैचेज इट. तो बॉल को कैसे पकड़ते हो? हाथ से पकड़ते हो. अगर हाथ से नहीं पकड़ा तो बॉल छूट जाती है, बॉल छूट के कहीं और चली जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच यू परफॉर्म यूजिंग योर हैंड. बुक पढ़ना है, कैसे पकड़ते हो? बुक को हाथ में ही पकड़ते हैं. टीवी देख रहे हो, पापा ने न्यूज़ का चैनल लगा रखा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आई विश टू चेंज द चैनल, आई वांट टू सी कार्टून चैनल. रिमोट से चेंज करना है. सो हाउ डू यू होल्ड द रिमोट? आप रिमोट को हाथ में ही पकड़ते हो. चैनल रिमोट पे कैसे चेंज करते हो? यूज़ योर फिंगर्स. टेलीफोन करना है, हाथ से पकड़ना है. ठीक है ना. किचन में मम्मी काम करती हैं, आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो. सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच यू परफॉर्म विथ योर हैंड. पुल, पुश, होल्ड. पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, होल्ड मतलब पकड़ना. राइटिंग, क्लैपिंग, ईटिंग, कैचिंग. अपार्ट फ्रॉम this, when you go out to play, खेलते हो, you use your hands, you use your feet also. These are some of the activities which can be performed using hands only. कुछ ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि हाथ से ही होती हैं. ओके. पुल, पुश, होल्ड, राइट, क्लैप, ईट, कैच. These are some of the activities which are performed, which can be performed using hands only. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको कि सिर्फ हम हाथ से ही कर सकते हैं. ओके. देन लेट अस सी द एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय लेग. ओके. नाउ सी व्हाट आर द एक्टिविटीज़. द एक्टिविटीज़ आर
वॉक, चलना, वॉकिंग पे जाते हैं ना हम, वॉक, रन, स्टैंड, डांस, जंप, kick. These are some of the activities which are done using leg, जो हम अपने पैर से करते हैं. जैसे चलना है, जंप करना है, दौड़ना है, खड़े रहते हो, डांस करना, किक, बॉल को किक करना, ये कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि आप अपने पैर से ही करते हो. ओके, these are some of the activities which can be performed using your hand and leg. Rest of the body parts also perform so many other functions. यहाँ पे हमने सिर्फ हैंड एंड लेग की एक्टिविटीज़ देखी. इसके अलावा जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. So apart from these, like we use our mouth for eating. जैसे खाना कैसे खाते हो आप? मुंह से खाते हैं. So we use our mouth for eating, smiling, laughing, speaking. बात करने के लिए, खाना खाने के लिए, हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए हम कैसे करते हैं? We use our mouth. ठीक है, हम अपने माउथ से ये सारे एक्टिविटीज़ करते हैं. So each and every body part plays a very important role in the smooth functioning of our body. हमारी बॉडी अच्छे से काम करे, हम हेल्दी रहें, उसके लिए it is very important that all the body parts function properly. हम हेल्दी रहें, अच्छे रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें. अगर एक भी पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी. वी विल हैव प्रॉब्लम. हमें पेट में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो इट इज़, देयर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अलग अलग हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. दीज आर द पार्ट्स विच आर आउटसाइड आवर बॉडी. ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बाहर हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सो मेनी इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं. ये तो आपने सारे बाहर वाले बॉडी पार्ट्स देखे. बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में अंदर हैं, जिनको कि हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं. जैसे हमारा हार्ट है. हाउ डू यू ब्रीथ? सांस लेते हैं, हार्ट हमारा जो है अंदर क्या करता है? पंप करता है ना. जब आप सांस लेते हो, सांस जब हम अंदर लेते हैं, वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. नाक से तो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, बट देन बॉडी के अंदर जा कर के भी बहुत सारा मैकेनिज़्म होता है. बॉडी के अंदर भी जा कर के बहुत सारा फंक्शन होता है. जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपके हर बॉडी पार्ट में आप देखोगे रेड रेड सा दिखता है ना. हैंड में आप देखोगे फिंगर टिप्स है, आपका हैंड है, रेड रेड सा दिखता है, पिंक सा दिखता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड. तो जो हार्ट है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड भेजता है. बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पहुंचना ज़रूरी है. अगर किसी भी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो पार्ट ख़राब हो जाएगा. ओके, देन आवर ब्रेन इज़ देयर. आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी करते हो, वो कैसे होता है? वो सारा हमारा ब्रेन हेल्प करता है. कुछ भी हम सोचते हैं, अभी हमारा खाना खाने का मन हो रहा है, अभी हमारा टीवी देखने का मन हो रहा है, वॉट एवर वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ठीक है ना. पेट, स्टमक जो बाहर है, बाहर जिसको हम स्टमक बोलते हैं, दैट यू कैन से, वो आप बोल सकते हो बाहर का पार्ट है. जो रियल में जो स्टमक होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल. जो स्टमक है, स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन. वो बॉडी के हमारे अंदर होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट है, एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल.
ठीक है। तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। सारे ही पार्ट्स जिनके बारे में हमें पता है, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, ऑल द बॉडी पार्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ओके, सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज़फुल। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत यूज़फुल है। कान नहीं होगा तो आप सुनोगे कैसे? यू कैन नॉट हियर एनीथिंग। नाक नहीं होगी तो स्मेल कैसे करेंगे? और स्मेल हम नोज से ही कर सकते हैं। वी कैन स्मेल ओनली विद द नोज। वी कैन हियर ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर। यू कैन होल्ड समथिंग ओनली विथ योर हैंड। फीट से हम किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। यू कैन किक द बॉल ओनली विथ योर फीट। अब बॉल को किक करना है तो फीट से ही किक करोगे, आप अपने हाथ से उसको किक नहीं कर सकते हो। क्लैप करना है, वी विल यूज़ आवर हैंड्स ओनली। वी कैन नॉट क्लैप विद द हेल्प ऑफ आवर फीट। ओके, सो द पार्ट्स, द एक्टिविटीज़ विच कैन बी परफॉर्म्ड by our hands cannot be performed by our feet. जो काम हमारे हाथ कर सकते हैं वो काम हमारे पैर नहीं कर सकते। and the activities which are performed by our feet cannot be performed by our hand. जो काम हमारे feet करते हैं वो काम हमारे हाथ नहीं कर सकते। So these are different body parts. Out of these body parts there are 5 special parts which play a very unique role. ये सारे बॉडी पार्ट्स में 5 बॉडी पार्ट्स हैं जो कि बहुत यूनिक रोल प्ले करते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। वो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में ही हैं बट उनका फंक्शन बहुत यूनिक होता है। वी विल लर्न अबाउट दोज पार्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. In my next video, I will tell you about those special 5 body parts. Okay, next video में मैं आपको उन 5 special parts के बारे में बताऊंगी. So today children, I will stop here only. Today we have learnt the different body parts and what are the activities performed by hand and the activities which are performed using leg. In my next video, I will tell you about those 5 special body parts. So that's all for today children. Thank you so much.